Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, my dear students. I hope you all are fine and safe at your homes. Welcome to chemistry class with chapter 3, theories of covalent bonding and shapes of molecule. Let us start our today's lecture. Today we will discuss about a very important and interesting theory, that is VSEPR theory. We will discuss its discovery, its main postulates, its applications, and at the last there is an assignment. Before starting our today's lecture, we have a look on the Lewis concept. You people are well familiar of Lewis concept, that it explains about the bond formation. Limitations of Lewis concepts are that it helps, that it explain the formation of covalent bond as a shared pair of electrons between two atoms. इसमें लिविस कॉन्सेप्ट ने क्या हमें बताया कि कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है. एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होता है टू एटम्स के दरमियान में और एक बॉन्ड बन जाता है. दैट्स ऑल. ये लिविस ने हमें कॉन्सेप्ट दे दिया बॉन्ड फॉर्मेशन का, बट लिविस ने हमें एक्सप्लेन नहीं किया कि शेप क्या है, जो बॉन्ड बना है उसकी शेप क्या है. इट डजंट एक्सप्लेन्स द शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स. At the same time, it doesn't help us to explain the geometry of molecules. Other are, Lewis concept does not explain bond energy, relative strengths of bond, and paramagnetism. These are the limitations of Vesper, drawbacks these are the drawbacks of the Lewis concept, that it doesn't help us to determine the shape of the molecule, geometry of the molecule, bond energy of molecules, relative strengths of bond, and paramagnetism. Because of these limitations of Lewis concept, scientists put their efforts to explain these drawbacks of Lewis concept, and their continual efforts bring new theories that overcome the defects of Lewis concept. Like these modern theories help us to predict the shape of molecule, geometry of molecule, and it also helps to predict the physical and chemical properties of molecules. Some of the modern theories that exist and that are very well known, these and also included in your syllabus, are the valence shell electron pair repulsion theory. It is also pronounced as Vesper theory. Then valence bond theory, that is VBT, and the molecular orbital theory, that is MOT. Today we will discuss Vesper theory, that is VSEPR theory, valence shell electron pair repulsion theory, and it is commonly known as VSEPR, VSEPR theory, और इसको वेस्पर भी प्रोनाउंस कहते हैं. Discovery of VSEPR theory. This theory was suggested by Sidgwick and Powell in 1940. इस थ्योरी का क्या मेन कॉन्सेप्ट था? The shape or geometry of a molecule or ion depends on the number of shared pair as well as lone pair of electron around the central atom of the molecule. क्या मतलब है इसका? मेन कॉन्सेप्ट VSEPR थ्योरी का क्या था कि आपके एक मॉलिक्यूल या आयन की ज्योमेट्री या शेप को एक्सप्लेन करने के लिए उसके इर्द गिर्द जितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, चाहे वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है या चाहे वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, वो सारे इलेक्ट्रॉन्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं एंड दे ऑल आर इंक्लूडेड in determining the shape or geometry of a molecule.
समझ आया? क्या कहा इसने कि एक मॉलिक्यूल के गिर्द जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, चाहे वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं या चाहे वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे ऑल आर very important in determining the shape of the molecule. The next is Glimpse and Nylon in 1957. इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था कि अरेंजमेंट ऑफ एटम जो है एक मॉलिक्यूल के दरमियान में उसको डिटरमिन करता है रिपल्सिव interactions among all the electron pairs in the valence shell of central atom. क्या मतलब है इसका? गिब्सी और नीलोम ने क्या कहा था कि एक एटम के इर्द गिर्द क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, और जितने एक एटम के इर्द गिर्द जितने भी इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, दे ऑल आर नेगेटिव चार्जेस एंड नेगेटिव चार्जेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिपल ईच अदर. इट मींस there are repulsive forces of repulsive forces among the electrons of an atom. अब अगर हम वैलेंस शेल की बात करते हैं, वैलेंस शेल में भी क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स का नेगेटिव चार्ज है और वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं. लिप्सी ने क्या कहा था और नायलोन ने क्या कहा था कि ये जो अरेंजमेंट ऑफ एटम है वो इलेक्ट्रॉन्स की रिपल्सिव इंटरैक्शन से डिटरमिन होती है. और कौन से इलेक्ट्रॉन्स की रिपल्सिव इंटरैक्शंस? वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स की रिपल्सिव इंटरैक्शंस. इसी वजह से इस थ्योरी को नाम दिया गया वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी. इस थ्योरी का नाम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन क्यों दिया गया? बिकॉज एटम के आउटर मोस्ट शेल में, वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें जो रिपल्जन्स हैं वो रिपल्सिव इंटरैक्शंस जो हैं वो डिटरमिन करती हैं मॉलिक्यूल की शेप को, मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को. इसी वजह से इसको VSEPR थ्योरी कहा गया. बेसिक अजम्पशन क्या है VSEPR थ्योरी? ये जो अभी बेसिक अजम्पशन इसकी क्या है? इलेक्ट्रॉन पेयर्स अराउंड द सेंट्रल एटम. अब पहले हम देख लेते हैं सेंट्रल एटम क्या है. सेंट्रल एटम क्या है? वो मॉलिक्यूल का वो एटम जिससे बाकी तमाम एटम्स अटैच्ड हो, वो क्या कहलाएगा? सेंट्रल एटम. लाइक अगर आप ये देखें तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला है, ये सेंट्रल एटम है और इसके साथ 2 ऑक्सीजन एटम्स अटैच्ड हैं. SO2 का फॉर्मूला है. सल्फर इज द सेंट्रल एटम. NH3 में नाइट्रोजन इज द सेंट्रल एटम. BCl3 में B is the central atom. BrF3 में Br is the central atom. सेंट्रल एटम का कॉन्सेप्ट आपको पता चल गया. अब हम बेसिक अजम्पशन की तरफ चलते हैं. क्या बेसिक अजम्पशन है VSEPR थ्योरी की? कि सेंट्रल एटम के जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं वो स्पेस में इस तरह से अरेंज होते हैं कि जो शेयर्ड पेयर हैं और जो इलेक्ट्रॉन जो लोन पेयर हैं वो मिनिमम रिपल्जन्स फील करें, वो मिनिमम रिपल्जन्स को फेस करें. दीज आर कॉल्ड VSEPR थ्योरी. इसका ये बेसिक अजम्पशन था. क्या था? कि सेंट्रल एटम के गिर्द इलेक्ट्रॉन पेयर्स, चाहे वो बॉन्ड पेयर हैं चाहे वो लोन पेयर हैं, वो इस तरह से अरेंज होते हैं कि वो मिनिमम रिपल्जन्स को फेस करें. जब मिनिमम रिपल्जन्स होगी अरेंजमेंट की वजह से तो इसमें मिनिमम एनर्जी होगी और मिनिमम एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मैक्सिमम स्टेबिलिटी. इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से स्पेस में अरेंज होंगे कि वो मिनिमम रिपल्जन्स फेस कर सके. इस तरह से उनको मिनिमम एनर्जी मिलेगी और इसकी वजह से उनको मैक्सिमम स्टेबिलिटी मिलेगी. सिंपली हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन स्पेस में इस तरह से अरेंज हैं कि वो मिनिमम रिपल्जन्स फेस करेंगे ताकि वो मैक्सिमम स्टेबिलिटी गेन कर सके. अब ये देखें, अगर आप इस डायग्राम में देखें तो इलेक्ट्रॉन्स की अगर एक सेंट्रल एटम के गिर्द 2 और एटम्स अरेंज हैं तो लीनियर शेप इज द बेस्ट शेप फॉर दीज मॉलिक्यूल, फॉर दीज एटम्स, क्योंकि ये वो शेप है जिसमें वो मिनिमम रिपल्जन्स फेस कर रहे हैं. अब अगर आपके पास एक एटम है और उसमें 3, लाइक BCl3 सेंट्रल एटम है, उसके गिर्द 3 क्लोरीन एटम है, दिस इज द बेस्ट शेप, बेस्ट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स जिसमें वो मिनिमम रिपल्जन्स फेस करेंगे और मैक्सिमम
स्टेबल होंगे। नेक्स्ट देखिए, पहले बिफोर प्रोसीडिंग फॉरवर्ड हम जरा बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का कॉन्सेप्ट देखते हैं। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो कि किसी दूसरे एटम से शेयर करके एक कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, दीज आर कॉल्ड बॉन्डिंग एक्ट। लाइक ये वाटर का मॉलिक्यूल है, इस ऑक्सीजन ने इस हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड बनाया हुआ है बाय शेयरिंग वन इलेक्ट्रॉन। सेम इज द हियर, ये जो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं और एक बॉन्ड बना रहे हैं, दीज आर कॉल्ड बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स या बॉन्डिंग पेयर्स। बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स भी इनको कहते हैं। अमोनिया के केस में देखिए, नाइट्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन से शेयर किया और एक कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया, दीज आर कॉल्ड बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। this and this is called bonding electrons. Similarly in PCl3, this is bonding electron, this is bonding electron, and this is bonding electron as well. The next is lone pairs. Lone pairs क्या है? वैलेंस शेल के वो इलेक्ट्रॉन्स जो कि कोई बॉन्ड नहीं बना रहे, they are called lone pairs और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। क्या मैंने आपसे कहा? वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, जो कि बॉन्ड नहीं बना रहे, वो उसी तरह से अकेले रहते हैं, दीज आर कॉल्ड लोन पेयर्स। लाइक ऑक्सीजन के गिर्द ये दो इलेक्ट्रॉन पेयर्स एज लोन पेयर हैं, यहाँ पे ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, दो इलेक्ट्रॉन्स अलग हैं और दीज आर लोन पेयर्स। अमोनिया के केस में नाइट्रोजन के ऊपर ये दो इलेक्ट्रॉन आपको नजर आ रहे हैं एंड दे आर कॉल्ड लोन पेयर और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। PCl3 के केस में ये एक जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, इट इज बिहेविंग एज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट चलते हैं पोस्टुलेट्स ऑफ वेस्पर। आपके सिलेबस में 5 पोस्टुलेट्स ऑफ वेस्पर हम डिस्कस करेंगे। वेस्पर थ्योरी के VSEPR थ्योरी के 5 पोस्टुलेट्स हैं। Let them discuss one by one. First postulate of VSEPR theory is that सेंट्रल एटम के गिर्द इलेक्ट्रॉन पेयर्स इस तरह से अरेंज होते हैं कि वो मिनिमम रिपल्जेंस फेस कर सकें। वो एक दूसरे से इतने दूर अरेंज होते हैं कि वो जितना दूर एक दूसरे से अरेंज हो सकते हैं वो होते हैं। Around the central atom, try to keep themselves as far apart as possible. वो एक दूसरे से जितने दूर अरेंज हो सकते हैं वो इतना दूर अरेंज होते हैं। Why? To avoid repulsions between bonded atoms. Bonded atoms के दरमियान में repulsions, bonded atoms और lone pair of atoms के दरमियान में, यहाँ पे lone pairs भी लिख लें, बॉन्डेड एटम्स या लोन पेयर्स के दरमियान में मिनिमम रिपल्जेंस को अवॉइड करने के लिए वो एक दूसरे से जितना दूर हो सके अरेंज होते हैं। रिपल्जेंस मिनिमम होंगी तो स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगी। लाइक ये अभी डायग्राम में पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ये कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन के इर्द गिर्द 2 ऑक्सीजन एटम्स मैक्सिमम अपार्ट हैं और इस तरह से वो क्या है, मिनिमम रिपल्जेंस फेस कर रहे हैं और मैक्सिमम स्टेबिलिटी फेस कर रहे हैं। नाइट्रोजन के केस में 3 बॉन्ड पेयर्स और एक लोन पेयर मैक्सिमम अपार्ट, मैक्सिमम दूर अरेंज है, इस तरह से वो मिनिमम रिपल्जेंस और मैक्सिमम स्टेबिलिटी फेस कर रहे हैं। BCl3 के केस में देखिए 3 बॉन्ड पेयर्स हैं, वो इतनी दूर एक दूसरे से अरेंज हैं कि वो मिनिमम रिपल्जेंस फेस कर रहे हैं और मैक्सिमम स्टेबिलिटी इनके पास है। सेकंड पोस्टुलेट की तरफ चलते हैं। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स या जिनको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं, ये ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई करते हैं देन द बॉन्डिंग पेयर्स। अभी मैंने आपको बताया था कि आपके पास एक एटम के गिर्द 2 तरह के इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो लोन पेयर हैं और एक बॉन्डिंग पेयर्स हैं। अब इनमें जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई करते हैं और जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कम स्पेस ऑक्युपाई करते हैं। व्हाई? बिकॉज कि जो लोन पेयर हैं
वो मैक्सिमम स्पेस क्यों ऑक्यूपाई करें? बिकॉज देयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज एक्सक्लूसिवली ऑन द सेंट्रल एटम रेदर देन द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन ग्रुप्स। अब इसमें वो आपको क्या कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो सिर्फ सेंट्रल एटम के पास है, उसको कोई दूसरा एटम जो लोन पेयर ऑफ एटम है, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो सिर्फ सेंट्रल एटम उनको अट्रैक्ट कर रहा है, वो किसी दूसरे एटम के अंदर नहीं है। इसकी वजह से ये जो लोन पेयर्स हैं ये बॉन्ड एंगल को भी इफेक्ट करते हैं। इसकी वजह से बॉन्ड एंगल शॉर्टर हो जाता है, और इसकी वजह से एक नई तरह की ज्योमेट्री भी हमारे सामने आती है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री। ठीक है, क्या मैंने आपसे कहा, जिस भी एटम के पास लोन पेयर होगा, लोन पेयर क्योंकि ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, तो वो जो बॉन्डेड एंगल्स हैं उनको शॉर्ट कर देगा, और इस लोन पेयर की वजह से एक न्यू तरह की ज्योमेट्री हमारे सामने आएगी, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री। लाइक अगर आप यहाँ पे देखिए, ये Sn है, इसके पास ये दो बॉन्ड पेयर्स हैं और ये लोन पेयर है। लोन पेयर ने ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई की हुई है, इस वजह से ये जो दो बॉन्ड पेयर्स हैं ये क्या हो गए, इनका बॉन्ड एंगल श्रिंक हो गया, ये एक दूसरे के क्लोज आ गए हैं। इसकी वजह से एक नई ज्योमेट्री सामने आएगी जो कि इसकी शेप है वी शेप। आगे हम इसको डिटेल में भी देखते हैं। नेक्स्ट अस एक्सप्लेन थर्ड पोस्टुलेट। थर्ड पोस्टुलेट क्या है? एक मॉलिक्यूल के पास लोन पेयर और बॉन्ड पेयर है, वो दोनों लोन पेयर और बॉन्ड पेयर जो हैं वो डिटरमिन करेंगे ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल के पास लोन पेयर भी है, बॉन्ड पेयर भी है, और ये दोनों ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन करेंगे, डिटरमिन करेंगे। व्हाई? VSEPR थ्योरी जो है वो डील करती है लोन पेयर से और बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। इससे पहले जो थ्योरीज थी वो सिर्फ बॉन्डेड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को फोकस करती थी, वो सिर्फ बॉन्डेड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की मदद से ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स एक्सप्लेन करती थी। VSEPR थ्योरी ने दोनों को फोकस किया और उसने कहा कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल के लिए हमें हेल्पफुल होंगे। लाइक अगर ये आप देखें अमोनिया के केस में, तो ये आपके पास एक लोन पेयर है और ये बॉन्ड पेयर है। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की वजह से इसकी जो शेप है वो ट्रायंगुलर पिरामिडल बन गई है। वो क्या बन गई? ट्रायंगुलर पिरामिडल बन गई। फोर्थ पोस्टुलेट क्या है? रिपल्सिव मैग्नीट्यूड जो है, हमने क्या कहा था कि एटम के गिर्द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रिपल्सिव फोर्स क्रिएट कर रहे हैं। रिपल्सिव फोर्सेस का मैग्नीट्यूड क्या है? क्या है? अगर दो लोन पेयर्स हैं तो उनकी रिपल्सिव फोर्सेस ज्यादा होंगी देन अगर एक लोन पेयर है और एक बॉन्ड पेयर, और उसकी रिपल्सिव फोर्सेस ज्यादा होगी अगर सारे बॉन्ड पेयर हैं। लाइक मैं अगर आपसे कहूं कि आपके पास दो लोन पेयर्स हैं और एक आपके पास बॉन्ड पेयर है, तो उसमें रिपल्सिव फोर्सेस लोन पेयर की ज्यादा होंगी, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर की उससे कम होगी, फिर बॉन्ड पेयर की सबसे कम होगी। इन लोन पेयर्स की वजह से आइडियल बॉन्ड एंगल से डेविएट हो जाता है। बॉन्ड एंगल जो है वो लोन पेयर से डेविएट हो जाता है, और इसकी वजह से जो ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल है वो भी चेंज हो जाती है। बॉन्ड ज्योमेट्री भी क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। क्यों? द रीजन इज कि जो लोन पेयर्स हैं वो सिर्फ एक न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में होते हैं, इसलिए वो ज्यादा स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं और मैक्सिमम रिपल्जेंस ऑफर करते हैं। अगर आप इन एग्जांपल्स में देखें, ये आपके पास केस है, ये जो आपके पास केस है इसमें आपके पास कार्बन के गिर्द 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स और वो 4 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, इसलिए इसका बॉन्ड एंगल है 109.5। आगे हम देखें अमोनिया के केस में, तो 3 बॉन्ड पेयर्स हैं और एक लोन पेयर है। इस लोन पेयर की वजह से इसका एंगल हो गया 107.5। इसका बॉन्ड एंगल कितना हो गया? रिड्यूस होकर 107.5 हो गया। और इसकी शेप अब टेट्राहेड्रल, जो कार्बन मीथेन की थी वो अब टेट्राहेड्रल नहीं रही, वो क्या होगी? ट्रायंगुलर पिरामिड।
इसी में अगर हम आगे देखें तो ये आपके पास वाटर है जिसमें दो बॉन्ड पेयर्स हैं और दो लोन पेयर्स हैं। इसका बॉन्ड एंगल और श्रिंक हो गया और इसका बॉन्ड एंगल है 104.5। अब बॉन्ड एंगल्स क्या हो गए हैं आपके पास, श्रिंक हो गए हैं, 109, 107 एंड 104। इसकी वजह से आपके पास शेप्स भी नहीं ना, तो समझ जाओ।
इधर बैठो और अब बैठो, ये खोल दो दोनों चीजें। अब मुझे कुछ नहीं करना, मुझे पता है कि तुम सही के लिए रखोगे। अब अगर तुमने कोई आवाज निकाली है तुम अंदर नहीं छोड़ूंगी। इधर अशरफ के पास नहीं जाना, अभी तो कुछ नहीं। इधर अब ये उधर बैठो ना बेटा, आपके शपथ की आवाज आती है। सॉरी, आई थिंक बीच में कुछ इंटरप्शन हो गई है। हाँ जी, हम बात कर रहे थे रिपल्सिव इंटरैक्शंस की, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि ये तीनों जो हैं ये AB4 टाइप से बिलोंग करते हैं। इसमें ऑल बॉन्ड पेयर्स हैं और इसका बॉन्ड एंगल 109.5 है। ये भी आपके पास AB4 की टाइप है
और इसमें एक लोन पेयर है। इस लोन पेयर की वजह से रिपल्सिव इंटरेक्शन ज्यादा है और डेफिनेटली ये इस कैटेगरी में फॉल कर रहा है कि एक लोन पेयर है और एक बॉन्ड पेयर है। इसकी वजह से इसका जो बॉन्ड एंगल है वो आइडियल 109.5 नहीं है, उससे कम होके 107.5 हो गया। आइडियल बॉन्ड एंगल 109.5 है AB4 टाइप में, लेकिन ड्यू टू दिस लोन पेयर ये आपके पास डिक्रीज होके 107.5 हो गया है। देन आपके पास AB4 टाइप की एक और एग्जांपल है जिसमें दो बॉन्ड पेयर्स हैं और दो लोन पेयर्स हैं। दैट इज ये हमारे पास फर्स्ट केस है। इसमें क्या है, बॉन्ड एंगल 104.5 हो गया है और वो क्यों हुआ है, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ दीज टू लोन पेयर्स। दो लोन पेयर्स हैं इसलिए बॉन्ड एंगल और ज्यादा श्रिंक हो गया है, डेविएट हो गया है। लोन पेयर्स ने ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई कर ली है, बॉन्ड एंगल श्रिंक हो गए हैं और बॉन्ड एंगल 109.5 जो कि आइडियल एंगल है उससे श्रिंक होके कितना हो गया, 104.5। तो ये आप देखें कि बिकॉज ऑफ यहाँ से अब आपको क्या पता चला कि लोन पेयर की रिपल्शन ज्यादा है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर की कम है और बॉन्ड पेयर की सबसे ज्यादा कम है और इसकी वजह से बॉन्ड एंगल भी श्रिंक हो जाता है आइडियल से। नेक्स्ट फिफ्थ पोस्टुलेट VSEPR थ्योरी का क्या है कि आपके पास ये जो फिफ्थ पोस्टुलेट है ये डील करता है मल्टीपल बॉन्ड से। मल्टीपल बॉन्ड क्या होते हैं, डबल बॉन्ड और जो ट्रिपल बॉन्ड है वो आपके पास मल्टीपल बॉन्ड्स कहलाते हैं। VSEPR थ्योरी का जो लास्ट पॉइंट है वो किससे डील करता है, मल्टीपल बॉन्ड से। मल्टीपल बॉन्ड्स से कैसे डील करता है, डेफिनेटली अगर मल्टीपल बॉन्ड्स हैं तो इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं। लाइक अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड को देखिए, आपके पास ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर, इसकी अपनी चार्ज डेंसिटी, ये इलेक्ट्रॉन पेयर, इसकी इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी, ये इलेक्ट्रॉन पेयर, इसकी चार्ज डेंसिटी, ये इलेक्ट्रॉन पेयर, इसकी चार्ज डेंसिटी। मीन जो सेंट्रल कार्बन है उसके गिर्द चार्ज डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी ज्यादा है। ये बात समझ आ गई। VSEPR का पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि मल्टीपल बॉन्ड्स होंगे, डबल होंगे या ट्रिपल बॉन्ड होंगे तो सेंट्रल एटम के गिर्द इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी। ये आपको पता चल गया। दे ऑक्युपाई मोर स्पेस, डेफिनेटली सिंगल के हिसाब से जो डबल बॉन्ड है वो ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई करेंगे, बट दे बिहेव लाइक अ सिंगल बॉन्ड इन डिटर्मिनिंग द शेप। अब क्या है, ये है डबल बॉन्ड लेकिन ये बिहेव करेगा एज सिंगल बॉन्ड टू डिटरमिन द शेप ऑफ द। हम क्या करेंगे, हम इसको अज्यूम करेंगे, हम कंसीडर करेंगे कि ये डबल बॉन्ड एक बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड एक बॉन्ड है और ये डिटरमिन करेगा ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। बिल्कुल जैसे अब ये कार्बन एटम है, अब ये ऑक्सीजन, एक्चुअली यहाँ पे डबल बॉन्ड है लेकिन ये बिहेव कर रहा है एज सिंगल बॉन्ड इन डिटरमिनिंग द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल इन VSEPR थ्योरी। VSEPR थ्योरी ने क्या कहा कि जो डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, वो स्पेस भी ज्यादा ऑक्युपाई करता है, लेकिन जब बात आएगी ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल की तो ये आपके पास बिहेव करेंगे एज सिंगल बॉन्ड। ये क्या बिहेव करेंगे, एज सिंगल बॉन्ड, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ कम टुवर्ड्स एप्लीकेशंस ऑफ VSEPR थ्योरी। VSEPR थ्योरी हेल्प करती है इन डिटरमिनिंग द ज्योमेट्रीज ऑफ द मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। इसी वजह से हमने मॉलिक्यूल्स को क्लासिफाई किया है मोर क्लासिफिकेशंस में ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स प्रेजेंट अराउंड द सेंट्रल एटम। अब सेंट्रल एटम के गिर्द जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, चाहे वो बॉन्डिंग है या चाहे वो नॉन बॉन्डिंग है, उनके अकॉर्डिंग हमने मॉलिक्यूल्स की क्लासिफिकेशन कर दी। क्लासिफिकेशन क्या है, शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन पेयर सेंट्रल एटम के गिर्द, देन सेंट्रल एटम के गिर्द 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, देन सेंट्रल एटम के गिर्द 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, देन सेंट्रल एटम के गिर्द 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं। The last is shape of molecules containing 6 electron pairs around central atom. First application की तरफ चलते हैं, that is shape of molecules containing 2 electron pairs around central atom.
इसको हम कहते हैं AB2 टाइप। ए रिप्रेजेंट करेगा आपके सेंट्रल एटम को, बी रिप्रेजेंट करेगा आपके सेंट्रल एटम के साथ जो दो बॉन्डेड एटम्स हैं, और ये टू रिप्रेजेंट करेगा कि बॉन्डेड एटम्स टू हैं। AB2 टाइप आपको समझ आएगी कि AB2 टाइप का क्या मतलब है। ए रिप्रेजेंट कर रहा है सेंट्रल एटम को, बी रिप्रेजेंट कर रहा है सेंट्रल एटम के गिर्द कितने बॉन्डेड एटम्स हैं, और जो फिगर है न्यूमेरिकल वैल्यू है 2 3, ये नंबर ऑफ बॉन्डेड एटम्स को रिप्रेजेंट करेगा। इसमें हम देखते हैं आपके पास फर्स्ट टाइप है टू बॉन्डेड एटम्स हैं और जीरो लोन पेयर है, यानी कि टू ही एटम्स हैं और दोनों बॉन्ड पेयर्स हैं, कोई लोन पेयर नहीं। और ये आपके पास क्या होगा कि सिंगल बॉन्ड होंगे। इसमें जो शेप होगी वो लीनियर होगी, जो बॉन्ड एंगल होगा वो 180 होगा, और इसमें जो स्ट्रक्चर होगा लाइक दिस होगा, BE एक Cl एक Cl, और इसमें जो बॉन्ड एंगल है वो 180 है। AB2 टाइप की एक और एग्जांपल, एक और टाइप है, वो क्या है, टू बॉन्ड पेयर्स हैं और जीरो लोन पेयर, लेकिन इसमें आपके पास मल्टीपल बॉन्ड्स हैं। इसमें आपके पास क्या है, मल्टीपल बॉन्ड्स हैं। इसमें भी शेप लीनियर होगी और जो बॉन्ड एंगल होगा वो 180 ही होगा। एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड, अभी जो आपको एक्सप्लेन किया, ये डबल बॉन्ड है लेकिन ये बिहेव करेगा एज सिंगल बॉन्ड। अब आपको समझ आ गया, टू बॉन्ड पेयर्स हैं लेकिन सारे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे भी टू पेयर्स हैं लेकिन बॉन्ड्स कौन से हैं, मल्टीपल बॉन्ड्स। शेप इनकी, अब इसमें जो शेप है वो सेम है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक शेप है या चाहे वो मॉलिक्यूलर शेप। ठीक है, आगे चलते हैं। हमने इसको प्रिडिक्ट करना है वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग कि BeCl2 बेरिलियम क्लोराइड की शेप क्या है, इसका तरीका क्या होगा, वो आप समझेंगे। AB2 टाइप विद सिंगल बॉन्ड, हम सिंगल बॉन्ड की पहले करेंगे। BeCl2 है, हम क्या करें, BeCl2 बेरिलियम क्लोराइड की शेप प्रिडिक्ट कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ BSETR3। फर्स्ट स्टेप इज, हमारे पास सेंट्रल पॉलीवेलेंट एटम बेरिलियम है। बेरिलियम सेकंड ग्रुप से बिलोंग करता है, इसलिए इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 2 है। इसके साथ बॉन्डेड एटम्स कितने हैं, 2 हैं, 2 क्लोरीन एटम्स हैं। 2 क्लोरीन एटम्स बेरिलियम को कितने इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, एक क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन देगा, 2 क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन्स देंगे। Electrons contributed by 2 chlorine atoms is equal to 2। अब बेरिलियम के इर्द गिर्द टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2 इसके अपने 2 क्लोरीन के 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। इन इलेक्ट्रॉन्स को 4 इलेक्ट्रॉन्स को हमने पेयर में कन्वर्ट कर दिया, तो 2 पेयर बन गए। समझ आ गई, हम कहते हैं वन पेयर ऑफ शू में 2 जूते होते हैं, वो पेयर एक होते हैं। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन्स 4 हैं, उसको हमने पेयर कर दिया तो वो आपके पास 2 पेयर बन गए। ये दोनों पेयर जो है ये दोनों बॉन्ड पेयर्स हैं, कोई लोन पेयर नहीं है, तो जो टाइप बनेगी वो क्या बनेगी, AB2 टाइप। A स्टैंड्स फॉर सेंट्रल एटम, B स्टैंड्स फॉर बॉन्डेड एटम्स, और कोई लोन पेयर नहीं। इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम के गिर्द कैसे अरेंज होंगे, लीनियर तरीके से। मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री क्या होगी, वो भी क्या होगी, लीनियर होगी। सॉरी, ये इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री के साथ ये नीचे जो है वो आपके पास मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री है। मैं इसको ठीक करके दे देती हूँ आपको। इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री के बाद जो है वो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री आता है। सॉरी, MOLECULA और R, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री। इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री भी आपके पास क्या होगी, लीनियर होगी, और मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री भी लीनियर है। बॉन्ड एंगल 180 डिग्री है। इलेक्ट्रॉन पेयर और मॉलिक्यूलर, इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री और मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री में क्या फर्क है, इसका भी हम थोड़ी देर में देखेंगे। इस शेप में वेस्पर का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन, वेस्पर ने क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स अरेंज होंगे इस तरह से कि मिनिमम रिपल्जन हो और मैक्सिमम स्टेबिलिटी हो।
तो जो लीनियर अरेंजमेंट है एटम की, उसने इलेक्ट्रॉन्स को एक दूसरे से बहुत दूर कर दिया है, मिनिमम रिपल्जेंस है और मैक्सिमम स्टेबिलिटी है। दिस इज कॉल्ड, ये इसको मैक्सिमम स्टेबिलिटी देंगे। इसकी एग्जांपल्स में BeCl2, BeH2, HgCl2 और जिंक क्लोराइड। HgCl2 दैट इज मर्क्यूरी क्लोराइड और जिंक क्लोराइड, ये आपके पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। तो इनके आप आउटर मोस्ट में सिर्फ यहाँ पे लिखेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 2। आप इनकी जो डिटेल है वो नहीं करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट हो रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स यूज हो रहे हैं वो 2। अब अगर आपसे कहा जाए कि BeCl2 की आप एक्सप्लेन करें शेप ऑन द बेसिस ऑफ BsCpR3, तो आप ये सारी एक्सप्लेनेशन देंगे। ठीक, अब हम चलते हैं सेकंड टाइप की तरफ, AB2 टाइप विद मल्टीपल बॉन्ड्स, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। सेंट्रल एटम कार्बन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हैं, इलेक्ट्रॉन जो कि 2 ऑक्सीजन कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो 4 हैं। एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रही है ना, एक ऑक्सीजन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रही है, तो 2 ऑक्सीजन 4 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रही है। टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 8। इन इलेक्ट्रॉन पेयर्स को हम, इन इलेक्ट्रॉन्स को हम पेयर बनाएंगे तो 4 पेयर्स बन जाएंगे। अब जो नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स है वो है 4। अब जो 4 हैं इसमें से अब ये जो 4 पेयर्स हैं ये डबल बॉन्ड के तौर पे बिहेव कर रहे हैं, और डबल बॉन्ड जो बिहेव करते हैं वो सिंगल इलेक्ट्रॉन के तौर पे बिहेव करते हैं। इसलिए हम क्या कहेंगे कि जो बॉन्ड पेयर्स हैं वो हमारे पास 2 हैं, लोन पेयर 2 है, तो जो इसकी टाइप बनेगी वो क्या बनेगी? AB2 टाइप विद मल्टीपल बॉन्ड्स। यहाँ पे आप मल्टीपल बॉन्ड्स भी लिखते हैं, AB2 टाइप विद मल्टीपल बॉन्ड्स, AB2 टाइप विद मल्टीपल बॉन्ड्स। अब इसकी इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री क्या होगी? लीनियर होगी विद मल्टीपल बॉन्ड्स। अब जो इसकी इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री है वो लीनियर है, और जो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री है वो भी लीनियर है। बॉन्ड एंगल 180 है। एग्जाम्पल्स क्या हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और HCN, जिसको हाइड्रोजन साइनाइड कहा जाता है। चलिए इनकी एग्जाम्पल्स को देखते हैं। AB2 टाइप जिसमें सिंगल बॉन्ड पेयर्स हैं, उसमें क्या है? बेरिलियम है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स अपने शेयर किए हैं क्लोरीन के 2-2 एक इलेक्ट्रॉन से, और आपके पास एक बॉन्ड बन गया। ये लीनियर शेप में अरेंज है। जिंक के आउटर मोस्ट में जिंक ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, ये अपने से 2 इलेक्ट्रॉन यूज कर रहे हैं, एक क्लोरीन एक जिंक का इलेक्ट्रॉन और एक बॉन्ड, एक क्लोरीन और एक जिंक का इलेक्ट्रॉन और एक बॉन्ड, और ये टाइप कौन सी बन गई? AB2 टाइप। शेप क्या है? लीनियर है। बॉन्ड एंगल क्या है? 180 डिग्री है। AB2 टाइप विद मल्टीपल बॉन्ड्स। एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड, अभी हम पीछे एक्सप्लेन कर चुके हैं, ये डबल बॉन्ड बिहेव करते हैं एज सिंगल बॉन्ड, और इस तरह से इसकी ज्योमेट्री क्या होगी? लीनियर। बॉन्ड एंगल क्या हो गया? 180। हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन और कार्बन अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके एक बॉन्ड बना देते हैं। कार्बन अपने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन से, और ट्रिपल बॉन्ड बन जाता है। लेकिन ये जो ट्रिपल बॉन्ड है ये बिहेव करता है एज सिंगल बॉन्ड, और आपके पास एक बॉन्ड बन गया, और ये लीनियर शेप होगी ये, और बॉन्ड एंगल 180 होगा। आई होप सो आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं, दैट इज शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स अराउंड सेंट्रल एटम। इसमें AB3 टाइप हम इसको कहेंगे, सेंट्रल एटम के 3 बॉन्ड पेयर्स। AB3 टाइप की आपके पास 3 क्लासिफिकेशन है। AB3 टाइप को हमने और मजीद 3 क्लासेस में डिवाइड किया है। एक जिसमें तीनों बॉन्ड पेयर्स हैं, कोई लोन पेयर नहीं है, AB3 टाइप विद सिंगल बॉन्ड्स। ठीक है। दूसरा क्या है? AB3 टाइप है, उसमें कोई लोन पेयर नहीं है, लेकिन सारे सिंगल, लेकिन क्या है? सिंगल बॉन्ड नहीं है, वो मल्टीपल बॉन्ड्स है। AB3 टाइप ही है, उसमें कोई लोन पेयर नहीं है, लेकिन जो बॉन्ड्स हैं वो क्या है? मल्टीपल बॉन्ड्स है। तो हम इसको क्या कहेंगे? AB3 विद मल्टीपल बॉन्ड्स। थर्ड टाइप क्या है? 2 बॉन्ड पेयर्स और 1
लोन पेयर, इसको हम कहेंगे AB2E टाइप। इसको हम क्या कहेंगे? AB2E टाइप। नेक्स्ट इज, हम इसको वन बाय वन एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले AB3 टाइप विद सिंगल बॉन्ड, हम शेप प्रिडिक्ट करेंगे। प्रिडिक्ट द शेप ऑफ बेरिलियम क्लोराइड ऑन द बेसिस ऑफ BSEPR3। सेंट्रल पॉलीवेलेंट एटम हमारे पास बेरिलियम है, सॉरी बोरॉन है, और ये आपके पास बिलोंग करता है थर्ड ग्रुप से। ये क्या हमारे पास बिलोंग करता है? थर्ड ग्रुप से बिलोंग करता है। थर्ड ग्रुप से बिलोंग करता है तो इसके आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन 3 क्लोरीन एटम 3 इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 6। 6 इलेक्ट्रॉन्स को हम पेयर्स में कन्वर्ट करते हैं तो ये आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है। 3 इलेक्ट्रॉन पेयर जो हैं वो तीनों के तीनों बॉन्ड बनाने में इस्तेमाल हो गए हैं। तो ये क्या होगा? 3 बॉन्ड पेयर। कोई लोन पेयर नहीं है, नो लोन पेयर। तो ये टाइप क्या बनेगी? AB3 टाइप। इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री क्या है? ट्राइगोनल प्लेन। इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से अरेंज हैं? लाइक ट्राइगोनल प्लेन। ये आपके पास शेप क्या कहलाएगी? ट्राइगोनल प्लेन। मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री भी क्या होगी? ट्राइगोनल प्लेन। मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री भी क्या है? ट्राइगोनल प्लेन। अकॉर्डिंग टू वेस्पर, वेस्पर क्या कहता है? ये अरेंजमेंट, ये जो ट्राइगोनल प्लेनर अरेंजमेंट है एटम्स की, इलेक्ट्रॉन्स की, ये इलेक्ट्रॉन्स को मैक्सिमम अपार्ट रखती है और इस तरह से मिनिमम रिपल्जन फेस करेंगे और मैक्सिमम स्टेबिलिटी देंगे मॉलिक्यूल को। बॉन्ड एंगल इज 120 डिग्री। इसकी एग्जांपल्स में BCl3, BF3, BH3, ALH3, AlBr3, GaH3 and INH3, गैलियम हाइड्राइड, इंडियम हाइड्राइड, एल्यूमिनियम हाइड्राइड इसको कहते हैं। ये आपके पास AB3 टाइप की हमने फर्स्ट केस देखा था। ये आपके पास इसकी और एग्जांपल्स भी हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं सेकंड एग्जांपल AB3 की, जिसमें एक लोन पेयर होगा और 2 बॉन्ड पेयर। ये जो लोन पेयर है, ये इस लोन पेयर की वजह से, 1 लोन पेयर एंड 2 बॉन्ड पेयर्स की वजह से इसकी क्लासिफिकेशन क्या होगी? AB2E। E जो है ये रिप्रेजेंट करेगा लोन पेयर को, और B2 का मतलब है 2 बॉन्ड पेयर हैं, और E का मतलब है 1 लोन पेयर है। E के साथ 1 लगा दे या ना लगाएंगे तो 1 का 1 ही होगा। इसका मतलब है कि 2 बॉन्ड पेयर्स हैं, सेंट्रल एटम के 2 बॉन्ड पेयर्स हैं और 1 लोन पेयर है। इसकी एग्जांपल है PbCl2। सेंट्रल एटम जो है वो लेड है। लेड के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो यूज हो रहे हैं। 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 2 क्लोरीन एटम्स 2 इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट करेंगे। टोटल इलेक्ट्रॉन 6 हो गए। 4 + 2 = 6। 4 + 2 = 6। इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हो जाएंगे? 3। बॉन्ड पेयर्स है 2 और जो एक लोन पेयर है वो है 1। अब आप देखें, लोन या फर्स्ट केस पढ़े ना जिसमें लोन पेयर एग्जिस्ट कर रहा है, इससे पहले लोन पेयर नहीं था। 2 बॉन्ड पेयर हैं और 1 लोन पेयर। इसकी वजह से टाइप क्या बन गई? AB2E। B2 का मतलब है 2 बॉन्ड पेयर और E का मतलब E1 है, या E के साथ कुछ भी नहीं है तो ये 1 लोन पेयर है। इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री क्या है? ट्राइगोनल प्लेन। अब इसको हम इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री का क्या मतलब? S सेंटीग्रेड एक इलेक्ट्रॉन ये है। इसको अगर मैं इस तरह से आपको शो करूं, ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन, एक Sn ने कंट्रीब्यूट किया और एक Cl। इधर भी एक Sn ने कंट्रीब्यूट किया और एक Cl ने कंट्रीब्यूट। अब आप सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स पेयर को देखें। अगर आप सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को देखें, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ये है, ये है। अब अगर आप देखें इस तरह से तो ये इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो शेप बन रही है वो ट्राइगोनल प्लेनर बन गई। सॉरी मेरे मुझसे सही ड्रॉ नहीं हुई। खैर मैं इसको रेस करके दोबारा आपको करके दिखाऊं।
अब आपके पास क्या है, इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से अगर आप ज्योमेट्री देखेंगे तो वो आपके पास क्या होगी, इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री होगी। इन इलेक्ट्रॉन्स से जो आपको ज्योमेट्री मिल रही है वो कौन सी मिल रही है, ट्राइगोनल प्लेनर मिल रही है। ठीक है, अब हम चलते हैं मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री की तरफ। मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री क्या है? मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री का क्या मतलब है कि बॉन्ड बन गए, इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बने हैं उन बॉन्ड्स की क्या ज्योमेट्री। इस इलेक्ट्रॉन पेयर ने इन बॉन्ड्स को क्या किया है, फोर्स एग्जिस्ट की है, ये इकट्ठे हो गए हैं, ये क्लोज हो गए हैं, और इसकी जो शेप होगी वो वी शेप होगी। वो कौन सी शेप है, वी शेप। वी शेप को एंगुलर शेप भी कहते हैं। मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री क्या हुई, इस इलेक्ट्रॉन लोन पेयर की वजह से बॉन्ड एंगल्स पे रिपल्जन हुई और वो एक दूसरे के क्लोज हो गए। अब जो आइडियल बॉन्ड एंगल था AB3 टाइप का वो 120 था। अब जो बॉन्ड एंगल्स में बॉन्ड एंगल होगा वो 120 से लेस होगा, और ये 120 से लेस क्यों होगा, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ दिस लोन पेयर। अब वेस्ट VSEPR थ्योरी क्या कहती है कि जो लोन पेयर्स हैं वो ऑक्युपाई करते हैं मोर स्पेस, वो रिपल्जेंस क्रिएट करेंगे, और इस रिपल्जेंस की वजह से बॉन्ड एंगल जो है वो श्रिंक हो जाएगा। लाइक अगर आप यहाँ पे आपने SnCl2 का देखा है, PbCl2 में भी सेम केस होगा। और जो आपने VSEPR में पढ़ा था कि लोन पेयर्स की वजह से बॉन्ड एंगल आइडियल बॉन्ड एंगल से श्रिंक हो जाएगा, वो भी आपने यहाँ पे देख लिया कि 120 से वो लेस हो गया है। इसकी एग्जांपल्स में PbCl2, SnCl2 एंड SO2 आएगा। लाइक अगर आप देखें तो सल्फर जो है वो आपके पास यहाँ पे ये जो है, ये आप चल इसको हम नेक्स्ट उसमें देखेंगे, अभी हम सिर्फ SnCl2 को देखते हैं, इसको अभी हम यहाँ पे नहीं करते। इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री और मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री क्या है? इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री जो है वो शेप ऑफ मॉलिक्यूल को प्रिडिक्ट करती है ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स and lone pairs. Electron geometry is the shape of molecule predicted by considering both lone pair, bond electron pairs and lone pairs. Lone pair, lone electrons pair को हमने कंसीडर किया है इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री में। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम कैलकुलेट कर लेंगे। मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री जो है ये शेप ऑफ मॉलिक्यूल को प्रिडिक्ट करने में हमें हेल्प करेगी, और इसमें हम सिर्फ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को कंसीडर करेंगे। लोन पेयर्स को हम कंसीडर नहीं करते इन डिटरमिनिंग मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री। नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर जो हैं वो हम कैलकुलेट करते हैं सिर्फ उन इलेक्ट्रॉन से जो कि बॉन्डिंग होंगे। SO2 यहाँ पे नहीं आएगा, इसको हम आगे देखेंगे। अब यहाँ पे आप देखिए इलेक्ट्रॉन पेयर, जब हमने इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री निकाली थी तो उसमें हमने लोन पेयर को कंसीडर किया था और बॉन्ड पेयर को भी कंसीडर किया था, और हमने कहा था कि इसकी शेप क्या है, ट्रायंगुलर है। ये आपने क्या पढ़ा है, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री में लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों कंसीडर होते हैं। यहाँ पे हमने लोन पेयर को भी कंसीडर किया, बॉन्ड पेयर को भी किया, और हमने कहा कि इसकी इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर है। ट्राइगोनल प्लेनर है।
मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री में हम लोन पेयर्स को कंसीडर नहीं करते, सिर्फ बॉन्ड पेयर्स, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो हैं उनको कैलकुलेट करते हैं। आपने लोन पेयर को निकाल दिया, सिर्फ आप बॉन्ड पेयर्स को कंसीडर करें तो आपके पास शेप क्या बन रही है, ये दैट इज वी शेप। वी शेप को हम एंगुलर शेप भी कहते हैं। तो इसलिए जो आपके पास VSEPR थ्योरी है वो क्या करेगी, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी और मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री भी एक्सप्लेन कर दी और इसका डिफरेंस भी आपको पता चल गया। VSEPR थ्योरी भी दोनों को कंसीडर करके आपको शेप ऑफ मॉलिक्यूल का बताती है। थर्ड टाइप की तरफ चलते हैं, दैट इज AB3 टाइप विद मल्टीपल बॉन्ड्स। मल्टीपल बॉन्ड्स की तरफ अगर हम चले तो आपके पास सेंट्रल पॉलीवेलेंट एटम सल्फर है, इसके इर्द गिर्द 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 3 ऑक्सीजन एटम्स जो हैं वो 6 इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट करेंगे क्योंकि ये डबल बॉन्ड है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड सल्फर कितने हो जाएंगे, सल्फर के टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। 6 + 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो हैं, अगर आप इसको पेयर करेंगे तो ये 6 पेयर्स बन जाएंगे। बॉन्डेड पेयर्स कितने हैं, 3 हैं और कोई लोन पेयर नहीं। ये आपके पास टाइप क्या बनेगी, AB3 टाइप विद मल्टीपल बॉन्ड्स। इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होगी, उसी तरह से इलेक्ट्रॉन्स, ये आपके इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं, एक सल्फर का और एक ऑक्सीजन का। सेम इज हियर, एक सल्फर एक ऑक्सीजन, एक सल्फर एक ऑक्सीजन, एक सल्फर एक ऑक्सीजन, एक सल्फर और एक ऑक्सीजन। अब अगर इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट आप देखें और इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री निकालें तो आपके पास क्या होगी, ट्राइगोनल प्लेनर है। क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर है। मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री भी अगर आप देखें तो क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्स बॉन्डेड हैं तो इसलिए आपके पास मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री भी क्या होगी, ट्राइगोनल प्लेनर होगी। अब VSEPR थ्योरी क्या कहती है कि ये अरेंजमेंट जो है वो एटम्स को मैक्सिमम अपार्ट रखेगी और जो डबल बॉन्ड है वो बिहेव करेगा लाइक सिंगल बॉन्ड टू डिटरमिन शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। बॉन्ड एंगल जो है वो इसमें 120 होगा क्योंकि कोई बॉन्ड पेयर नहीं है ना, कोई लोन पेयर नहीं है जिसकी वजह से बॉन्ड एंगल श्रिंक होगा। तो जो बॉन्ड एंगल होगा वो कितना होगा, 120। एग्जाम्पल्स में आपके पास SO3 आएगी, CH2O आएगा और COCl2 आएगा। लाइक ये सल्फर है, इसके ये 2 बॉन्ड पेयर्स हैं, ये कार्बन है, इसके ये 2 ऑक्सीजन है। कार्बन ने 2 बॉन्ड डबल बॉन्ड बनाया ऑक्सीजन से जो कि बिहेव करेगा एज सिंगल बॉन्ड, एक क्लोरीन से बॉन्ड, एक क्लोरीन से बॉन्ड। ये आपके पास CH2O का फॉर्मूला है, कार्बन इज मेकिंग डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड विद क्लोरीन एंड सिंगल बॉन्ड विद क्लोरीन। ये आपके पास एक ओवरव्यू है। अगर आप देखें जो अभी तक हमने पढ़ा है, आपके पास इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री जो है वो क्या है, AB2, जिसमें आपके पास 2 लीनियर है, इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री भी लीनियर है और मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री भी लीनियर है। बॉन्ड एंगल 180 है। एग्जाम्पल BeCl2। सेकेंड टाइप हमने पढ़ी है AB3 टाइप, जिसमें आपके पास हमने पढ़ा एक AB3 टाइप है विद बॉन्ड्स, एक हमने पढ़ा है जिसमें आपके पास 2 बॉन्ड पेयर हैं और एक लोन पेयर है। ये आपके पास इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री है और मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री भी आपके पास ये आ गई है। नेक्स्ट इज असाइनमेंट। असाइनमेंट है, पेन डाउन पोस्टुलेट्स ऑफ VSEPR थ्योरी, why PbCl2 is V-shaped and AlCl3 is planar triangular, predict shape of following molecules. I hope so you have understood today's lecture. Thank you and have a nice day. जी 1 मिनट।